عام طور پہ بڑے لوگوں کی بڑی باتیں ہوتی ہیں اور ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم اپنے بڑوں کی، ہم اپنے اکابرین کی، ان کی عزت کریں، ان کا احترام کریں، ان کے اسکیڈول کا خیال رکھیں، اور یہی اردو والوں کا وتیرہ رہا اور یہی طریقہ رہا۔ ہمارے صدر صاحب کو باہر جانا ہے، ایک میٹنگ میں جانا ہے، ایک چینل کے ساتھ میں ان کی میٹنگ ہے، اور چونکہ وہ ابھی تک رکے ہیں گے، مجھے تو ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں سے آئیں گے، وہ آ کے بیٹھے بھی نہیں ٹھیک سے اور چل بھی دیے، جب بھی آتے ہو تو آتے ہو ہوا کی صورت، لیکن اب ایسا نہیں ہوا، دیر تک آپ نے وقت دیا ہے، اور آپ ہماری خواہش پر دیر تک رکنے کے باوجود، اب چونکہ بار بار سر کو فون آ رہے ہیں، ان کے ساتھیوں کو بھی فون آ رہے ہیں، تو ہماری وہ چاہ رہے ہیں کہ وہ اپنی بات مکمل کر کے چلے جائیں۔ میں انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ میں یہ ہے سر کا اصلی روپ، تالیاں تو بڑی خوشی ہوئی، میں ایسے جلسے میں آیا ہوں، معاف کرنا آپ کے جیسے اردو مجھے نہیں آتی، میں مراٹھی اردو بولوں گا، چلے گا؟ مولانا آزاد وچار منچ کے ذریعے بہت ہی بڑھیا یہ میٹنگ دی گئی ہے، اور مجھے بہت ہی خوشی ہو رہی ہے اس لیے کہ میں مولانا آزاد وچار منچ کے ذریعے پورے مہاراشٹر میں کام کرتا ہوں، اور تعلیم کے بارے میں ہمارا کام چلتا ہے۔ ہمارا ایک نعرہ ہے کہ پڑھو آگے بڑھو، اور دوسرا نعرہ ہے میرے پڑوس کے کوئی بھی بچے اسکول کے سوا نہیں رہنے چاہیے، وہ ذمہ داری میری۔ ایسا ہر مسلمان اگر سمجھے گا تو مسلمانوں میں کوئی بھی بچہ اسکول کے سوا نہیں رہے گا۔ آپ کو بتاتا ہوں، آج آپ تو سب تعلیم شدہ ہیں، آج ایسے حالات ہیں کہ اس دیش میں مسلمان بچے 5% بچے مدرسوں میں جاتے ہیں۔ میں مدرسوں کے خلاف نہیں، لیکن ماڈرن ایجوکیشن سے واقف نہیں رہتے۔ 38% بچے چائلڈ لیبر میں، اور یہ ذمہ داری کس کی؟ میں اپنی سمجھتا ہوں۔ پڑھے لکھے مسلمان، اور جس کا ذکر آپ نے کیا، بڑے بنگلے میں رہنے والے جو لوگ ہیں وہ مسلمان، میں دوسروں کے بارے میں نہیں بولوں گا، وہ مسلمان اپنے بچوں کو امریکہ UK میں بھیجتے ہیں، آکسفورڈ فیلاڈیلفیا میں بھیجتے ہیں، لیکن اپنے کارخانے میں مسلم بچوں کو کام کرنے لگاتے ہیں، اور غریب بچوں کو مدرسے میں بھیجتے ہیں۔ جہاں میں جاتا ہوں پورے بھارت میں مدرسوں میں ضرور جاتا ہوں، اور وہاں جانے کے بعد دیکھتا ہوں کہ میرا بچہ 3 سال کا، 5 سال کا، 6 سال کا قرآن شریف بہترین پڑھا لیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے اس کو عقل بہت ہے، لیکن وہ وہیں کے وہیں رہتا ہے۔ میں جن کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں اس کو خاص کچھ عزت نہیں ہے سماج میں، اس کو عقل سکھانے کا کام میں کرتا ہوں۔ میں ان کے بچوں کو اچھی شکشا ملنی چاہیے، اچھا ایجوکیشن ملنا، تعلیم ملنی چاہیے، اس لیے کوشش کچھ نہیں کرتا۔
जिनके पीछे मैं नमाज पढ़ता हूं उनकी हालत क्या है वो कभी नहीं देखता। ये कहां न कहां मेरी गलती है, ऐसा मैं समझता हूं। तो इस मीटिंग में जिन्होंने बहुत अच्छी तरह से ये मीटिंग ली, मैं कहूंगा ये कोरोना खत्म होने के बाद फिर मैं यहाँ आऊंगा और जरा अच्छी मीटिंग लेना बहुत जरूरी है। तो हमारे मुजीबुर रहमान साहब, मौलाना आजाद विचार मंच के मुंबई के सदर सादिक खान साहब, समीउल्लाह खान साहब, शब्बीर हसन साहब, इमरान खान साहब, इनकी ऊंचाई इतनी बड़ी है कि मुझे उनको मिलते वक्त ऐसा गलती बनना। फैयाज अनवारी साहब, कहाँ है फैयाज अनवारी साहब? तारो जिक्र का था इस्लाम। हफीजुल्लाह चौधरी साहब, अफसर कुरैशी साहब, हनीफ कमर साहब, अरुण गुप्ता साहब, मीर साहब, शादाब रशीद साहब, और जिन्होंने मीटिंग कंडक्ट की है वो हरजिल अजीज उबैदुर रहमान साहब। मैं इतना ही कहूँगा, आपका अफसाना सुनने के बाद मुझे ये लगा कि उसमें बहुत गहरी मीनिंग है। आज ऐसा है कि मुसलमान कोई हिंदू बस्ती में रहने की कोशिश करता है तो उसको वो जगह दी नहीं जाती। मुस्लिम अच्छे सोसाइटी में कोई हिंदू आना चाहता है तो उसको भी दी नहीं जाती, ये भी ध्यान में रखना। तो ऐसे हालात में आपने बहुत अच्छा अफसाना सुनाया। बंगले में रहने वालों के पास सब कुछ होता है लेकिन उनका दरवाजा बंद होता है। पड़ोस में कौन रहता है उनको मालूम नहीं होता। बंगला छोड़िए, फ्लैट में रहने वालों की हालत है। मैं जहाँ रहता हूँ मेरे पड़ोस में एक पुलिस ऑफिसर रहते थे, रिटायर्ड। हर दिन सुबह जाते वक्त मेरे घर आते थे और ये अपने पढ़ा क्या मुझे देते थे। मैं जो पढ़ता था वो उनको देता था। हर दिन मिलते थे। इत्तिफाकन उनको कैंसर हो गया तो मैं मिलना चाहता था लेकिन उनके बच्चों ने कहा नहीं, किसको मिलते नहीं। और एक दिन मैं सुबह उठा, पेपर लेने के लिए दरवाजे पे गया, बेल बजी तो बाहर बहुत सारे लोग थे। तो मैंने सुना पूछा क्या हुआ, तो सानफ साहब गए। मुझे इतना दुख हुआ कि दरवाजे तोड़ देना चाहिए, ऐसा मेरा कहना। आजकल साहब ऐसा है, हमेशा हम बोलते हैं कि आप पॉजिटिव होना चाहिए, लेकिन आजकल निगेटिव होना चाहिए होता है। आप क्या पॉजिटिव हो? निगेटिव होना चाहिए। यानी ये जो बीमारी आई है वो कैसी हालात कर दिए, देखो आदमी को आदमी तोड़ दिया। ये बिल्कुल गलत बात है। मैं आपको दरख्वास्त करूंगा कि ऐसी अफसाने इस तरह का लिखिए कि समाज इकट्ठा आएगा। और आपका बहुत अच्छा लगा मुझे, लेकिन ये हिंदू मुसलमान ये वो आज की हालत में क्या बोलते हैं, लव जिहाद। जिन्होंने शादी ही नहीं की वो शादी के बारे में लोग उल्टा बोलते हैं। अरे लव जिहाद नहीं होता है, लव होता है, मोहब्बत होती है। मोहब्बत लोगों को इकट्ठा लाती है।
और हम लोग जब ख्याल करते हैं तो लड़की के बारे में, औरतों के बारे में नहीं करते। आपके अच्छे मीटिंग में आप एक भी मेरी बहन नहीं, एक भी मेरी माँ नहीं, ये मैं अच्छा नहीं समझता। क्योंकि मैं जब कोई शेरो शायरी सुनता हूँ टीवी पे या मोबाइल पे, तो अच्छे बहुत सारी औरतें बहुत जोरदार शेरो शायरी सुनाते हैं और अफसाने भी सुनाते हैं। अगले मीटिंग में 50% औरतें होंगी, ऐसा देखिए। ऐसा है कि हमारे मजहब ने कोई औरत और मर्द में फर्क नहीं किया। वो फर्क किया है, वो कहाँ किया है? वो हिंदू धर्म में किया, मेरे धर्म में नहीं किया। मेरे धर्म में औरतों को इक्वल राइट दिए है, समान अधिकार दिए हैं। तो ये सारी बातें हम लोगों ने करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। आप यहाँ, मुझे अच्छा लगा कि ये अच्छी मीटिंग में मैं आया, ज़्यादा देर तक रुक नहीं सकता। मुझे लगा 6, इन्होंने कहा 6 बजे जाना है, मैं बोला 7 बजे चालू हो जाएगी, 9 बजे तक खत्म हो जाएगी, लेकिन मैं 9:30 के मीटिंग में जा सकूंगा, इसलिए उनको, मैंने चैनल पे जाना है मुझे, तो मैं उनको टाइम दिया हूँ। इसलिए मुझे दुख है कि कुछ और अफसाने मैं सुन सकता हूँ, सकूंगा, लेकिन आपको एक और दरख्वास्त है, आपके अफसाने जो उर्दू में है वो हिंदी में भी होने चाहिए, क्योंकि लोगों तक वो जाना बहुत जरूरी है। क्योंकि उर्दू में और हिंदी में जो साहित्य तैयार हो रहा है वो सब जगह जाना बहुत जरूरी है। मराठी में बहुत अच्छे अच्छे अफसाने आते हैं, खास करके दलित समाजों ने बहुत अच्छे लिखे हैं। वैसा मराठी में, मराठी मुसलमान बहुत कम लिखता है, और वो मेरे ख्याल से कोशिश होनी चाहिए। कुछ लोग करते हैं, नहीं ऐसा नहीं। मराठी कविता भी मुसलमान बहुत बड़े कवि है, मुसलमान जर्नलिस्ट है। गुप्ता जी सही बात है ना, जर्नलिस्ट है, ऐसी कोई बात नहीं, नहीं ऐसा, लेकिन होनी चाहिए। ये आप जो कर रहे हैं, मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और आप सब लोगों की माफी मांगता हूँ, और हमारे मुजीबुर रहमान साहब को कहता हूँ, फिर ये महामारी खत्म होने के बाद ये जरूर कीजिए। आपने क्या कहा, इसका मतलब इन्होंने कहा मुझे तिरिया का मतलब क्या है? जहर का तोड़। आज इस देश में बहुत बड़ा जहर क्या है वो आपको मालूम है? उसका तोड़ कुछ निकलना चाहिए। किसानों का आंदोलन जो चला है उससे तोड़ निकलेगा, लेकिन उनके मदद के लिए, समर्थन के लिए हम सब लोगों ने भी रास्ते पे आना जरूरी है। परसों के दिन मैंने यहाँ सत्याग्रह भी किया था, उनको बताने के लिए हम आपके साथ हैं, आप अकेले नहीं हैं। क्योंकि ये जो जहर है वो इस देश का जहर खत्म करना चाहिए। ये देश हमेशा मोहब्बत से चलने वाला है, ये कोई इस तरह से आपस के जुराई दरार निर्माण करके चलना नहीं है, ये चलना बहुत जरूरी है। और आपके लिए कहूँगा कि उर्दू स्कूलों के हालात बहुत खराब है, जहाँ मुस्लिम बच्चे जाते हैं वहीं खराब है, ये अच्छी बात नहीं। और बहुत दफा ऐसा होता है कि हमारे ही भाई वहाँ पढ़ाने वाले होते हैं, वो बोलते जाने दो, क्या पढ़ाने का है, क्योंकि उर्दू स्कूलों में कौन जाता है? गरीब बच्चा जाता है। अमीर बच्चे तो बड़े बड़े स्कूलों में जाते हैं। बीकेसी में बहुत बड़ी बड़ी स्कूलें हैं जहाँ 2-2 लाख फीस ली जाती है, शायद कम बोला होगा, ज्यादा भी होगी, मुझे मालूम नहीं। हाँ, 10-10 लाख। मेरे बच्चे तो म्युनिसिपल स्कूल में पढ़े हुए हैं, लेकिन हाँ, और दोनों प्रोफेसर हैं। सबीना दलवाई मेरी बेटी प्रोफेसर है, लॉ पढ़ाती है,
اور اس کا آج کل انڈین ایکسپریس میں آرٹیکلس آتے ہیں. تو ایسی کوئی بات نہیں کہ بڑے اسکول میں جانے کے بعد آدمی بڑا ہوتا ہے, لیکن میونسپل اسکول میں ٹھیک ڈھنگ سے پڑھانے کا کام ہونا چاہیے, اتنا ہی میں کہوں گا. اور نہیں ہوگا تو ہمارا اس کے اوپر نینترن ہونا چاہیے, ایک دباؤ ہونا چاہیے کہ ہمارے بچے اچھی طرح سے پڑھنے ہی چاہیے. اور ایک بات بولتا ہوں, ایک 15-20 سال کے پہلے میں جب مہاراشٹر میں جاتا تھا اور لوگوں کو بولتا تھا کہ آپ کے بچوں کو پڑھائیے. آج یہ میں بولنے کے لیے جاتا نہیں, کیونکہ میں اگر بولوں گا تو بولتے اسکول دیجیے. مسلم سماج میں اور خاص کر کے مسلم عورتوں میں اپنے بچوں کو پڑھانے کا ایک کانشیسنیس اتنا زبردست آیا ہے, اور یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ وہ جو ان کے دماغ میں آیا ہے وہ آگے جا کے کیسا بڑھے گا وہ دیکھنا چاہیے. یہ ہم ابھی 100% مسلم بچہ پڑھے گا, یہ دیکھنا بہت ضروری ہے. میں نے آپ کو تو شاید معلوم ہوگا کہ ہم لوگوں نے مولانا آزاد وچار منچ کے ذریعے ایک خان صاحب تھے, مجیب الرحمان صاحب تھے, مسلم ایجوکیشنل کانفرنس لی تھی یہاں یونیورسٹی میں. حامد انصاری صاحب جس میں آئے تھے, اور اس میں 3,500 لوگ تھے, ٹیچرز بڑے پیمانے پہ تھے. لیکن دربھاگیہ کی بات ایسے, اس کی ذمہ داری میں خود لیتا ہوں. اور آگے جو بڑھانا چاہیے تھا وہ ہم بڑھا نہیں پائے, وہ غلط ہے. یہ مہاماری ختم ہونے کے بعد مہاراشٹر میں شکشن یاترا کرنے والا ہوں پورے مہاراشٹر میں, اور اس میں آپ ضرور آئیے. اور ایک کہاں نہ کہاں ایک آخر میں ایک بات کہتا ہوں, بمن بچے بڑے خوشحال ہوتے ہیں, صحیح بات ہے نا؟ کیوں؟ کیونکہ صبح اٹھنے کے بعد ان کی ماں ان کو شلوک پڑھاتی ہے, گیتا پڑھاتی ہے, پرچوڑا پڑھاتی ہے, اس لیے اس کا برین پہلے سے ہی تیار ہوتا ہے. لیکن ہمارے بچے بھی قرآن شریف پڑھتے ہیں, ہمارے بچوں کو بھی برین تیار رہتا ہے, دھیان میں رکھیے. اور ہمارے ہاتھ میں اور ایک بات ہے جو بمنوں کے ہاتھ میں نہیں ہے. ہمارا اللہ تعالیٰ نے جان اور انبھو, اس کو کیا بولیں گے جان کو, علم اور صلاحیت, تجربہ, اس میں فرق نہیں کیا ہے. اس لیے دیکھیے آپ, میں ہمیشہ ودھان پریشد میں بولتے وقت ایک دفعہ راجیہ سبھا میں بولا کہ آپ کا ٹی وی خراب ہوگا, درست کرنے والا یوسف ہوتا ہے, آپ کا یہ اپنا اے سی خراب ہوا, درست کرنے والا عبدل ہوتا ہے, آپ کا واشنگ مشین خراب ہوا, تیار کرنے والا رحمان ہوتا ہے. سارے مسلمان ہوتے ہیں. جو یہ کام کرنے والا جو جھوپڑ پٹی میں رہتا ہے اس کو دماغ ہوتا ہے, کیونکہ وہ کام دماغ سے. ٹیلی فون, یہ ٹیلی فون بھی درست کرنے والا کون ہے؟ جائیے آپ کون سے بھی اسٹال پہ, وہی اپنا بچہ دکھائی دیتا ہے. اس کا مطلب اپنے لوگوں کو ٹرین ہے اور بچپن سے ان کو تعلیم دینا ضروری ہے. اور تعلیم دینے کے بعد جن کو تعلیم ملی ہے انہوں نے دوسروں کو تعلیم دینے کا کام کرنا چاہیے. میں آپ کو جاتے جاتے بتاؤں گا کہ میں بہت غریب گھر سے آیا ہوں. میں فرسٹ ایئر ٹو MA نوکری کر کے پڑھا ہوں. 8ویں سے 11ویں تک میرے گھر میں میرے پاس بکس نہ رہتے تھے, دوسرے کے بکس لے کے پڑھا ہوں. لیکن پڑھا کیوں؟ کیونکہ میرے والد صاحب نے مجھے یہ ہدایت دی کہ پڑھنا بہت ضروری ہے. تو آپ بھی یہی کام کریے. اور کہاں نہ کہاں ہمارے سارے بچے, ایک بھی بچہ ابھی باہر نہ رہنا چاہیے. ایک بات دھیان میں رکھیں, مہاراشٹر میں برہمنوں کی سنکھیا کتنی ہے؟ 3%. ہماری کتنی معلوم ہے؟ نہیں 11.5% ہے, 11.5% ہے. ابھی ہم پورے کے پورے سیکھیں گے, پڑھیں گے, تو 3% لوگ, یہ مراٹھا لوگ جو ہے ان کو ان کے اوپر نربھر رہنا پڑتا ہے ہمیشہ. ان کے سوا ان کا کچھ چلتا نہیں. ہم 11%, 11.5% بچے ہمارے پڑھیں گے تو ہمیں کچھ
बोलने की जरूरत नहीं, हमारे नाइंसाफी होती है ये भी कुछ बोलने की जरूरत नहीं. आम्हाला बघा विकेल कवडी मोलावरील, हमें अगर आप साथ में नहीं लेंगे तो आपका चलेगा ही नहीं, हमें आपको साथ में लेना पड़ेगा. हम अभी कुछ भीख मांगेंगे नहीं, हमें आपको देना ही पड़ेगा. ऐसी हालत हम पैदा करेंगे. धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें बुलाया और चांस दिया. और मैं भाई इसके बाद मोबाइल नीचे इधर देखो, इधर देखो. हाँ हाँ दादा थोड़ा अंदर. भाई से कहा कि हिल वाले जूते पहना करो, बड़े आदमी को कैसे पहनाएंगे? आगे आ जाओ, आगे आ जाओ. बहुत अच्छी, वेरी गुड, बहुत शुक्रिया जी. सर 2-3 बातें और करनी छोटी छोटी आपके आप तक पहुंच जाए वो जितनी बात. ये दादा पाजी. पहली बात तो औरतों खवातीन की आमद का जो मसला है उनको हमने रोका नहीं है, हमने दावत दी जरूर है, लेकिन उन्होंने कहा जो वक्त आपने रखा है उस वक्त हम अपने बच्चों को खाना पका कर खिलाते हैं. पैसा करते ना, ये लोग खाना पकाते हैं. अब ये अगली बार इंशाल्लाह वो जरूर करेंगे, अगली बार इंशाल्लाह हम जरूर करेंगे. एक बात. और दूसरी बात सर, दूसरी बात मैं आप सबके सामने एक ऐलान करना चाहता हूँ कि बज़्म इंसानियत वेलफेयर एसोसिएशन, जिसका मैं पैट्रॉन हूँ, जिसका मैं सरपरस्त हूँ, वो किसानों के साथ, उनकी तकलीफों के साथ बराबर उनके साथ खड़ा हुआ है. और आप में से तकरीबन तमाम लोग किसानों के हमदर्द हैं, किसानों के साथ खड़े हुए हैं. ये दो बातें मुझे अर्ज करती भाई साहब और आपका हम शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने अपना वक्त निकाला, 3 हज़रात तशरीफ लाए. सर अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज. आप तमाम तशरीफ रखिए, अभी बाकी है. वहाँ है सरकारी बैतुल खला जी, म्यूनसिपैलिटी का गवर्नमेंट का जो टॉयलेट होता है उसकी कहानी है, छोटी सी कहानी. सरकारी बैतुल खला अंधेरी स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 के सरकारी बैतुल खला के पास लोगों का हुजूम था. उसी हुजूम में एक अधेड़ उम्र मुसलमान भी था. उसकी शनाख्त, उसके लिबास, उसकी वज़े खते और पेशानी पर मौजूद सजदों के निशान से हो रही थी. इसी भीड़ में 2-3 पुलिस वाले भी वर्दी में मौजूद थे जो अपने हाथों में डंडे लिए हुए थे. प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर मुंबई सीएसटी से हार्बर लाइन से होती हुई लोकल ट्रेनें या तो सिर्फ अंधेरी स्टेशन तक आती हैं या फिर गोरेगांव तक जाती हैं. हार्बर लाइन की तमाम ट्रेनें दरमियान में पड़ने वाले हर स्टेशन पर रुकती हैं. इस प्लेटफॉर्म पर आने वाली गाड़ियों की आमद और रफ्त का दरमियानी वक्फा 10 से 15 मिनट या ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट तक भी हो जाता है. अलबत्ता इस प्लेटफॉर्म पर कभी कभार चर्चगेट की लोकल गाड़ियां भी आती जाती रहती हैं. आया जब से बोल रहा हूं तो गड़बड़ तो होगी ना भाई. नहीं, मैं भी अपनी भड़ास निकाल रहा था, घर में तो निकालने का मौका नहीं मिलता. चर्चगेट की लोकल गाड़ियां भी आती जाती रहती हैं. इस भीड़ से जो शोर उठ रहा था उससे लोगों का मुद्दा और मकसद समझ में नहीं आ रहा था. करीब जाने पर मालूम हुआ कि माजरा क्या है. इसी भीड़ में बैतुल खला इंचार्ज पुलिस वालों के सामने मायूस खड़ा था. भीड़ से एक अधेड़ उम्र का आदमी कहने लगा, हवलदार साहब, ये कमीना, बैतुल खला वाले की तरफ उंगली उठाते हुए. इस आदमी एवं मुस्लिम दाढ़ी वाले की तरफ इशारा करते हुए के लिए संडास साफ करने के लिए 2-3 मर्तबा 2-3 डिब्बे पानी बहाता है. और जब हम में से कोई जाता है तो ये सारा जरा सा पानी तो दूर साफ तक नहीं करता. दूसरा आदमी जो बिल्कुल मैले कुचले कपड़ों में कंधे पर कपड़े का एक छोटा सा झोला लटकाए
लटकाए हुए था, उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहने लगा, ये इसका बाप लगता है क्या, और हम इसके दुश्मन है क्या। इसी भी तीसरा कूद पड़ा और बैतुल खला वाले से कहने लगा, क्यों बे, ये पैसे देता है और हम क्या फुकट में खलास करते हैं। अभी तक सभी पुलिस वाले खामोश सुन रहे थे। इनमें खातून पुलिस ने तीसरे आदमी को डांटते हुए चिल्लाकर कहा, चुप, आधे घंटे से चपड़ चपड़ किए जा रहे हो, हम लोग क्या बेवकूफ है और तुम लोगों की तरह टाइम पास करने आए हैं क्या। फिर उस खातून पुलिस ने मुस्लिम आदमी से कहा, ओ चचा, तुम कुछ बोलोगे क्या, ऐसे ही मिट्टी के माधो बने रहोगे। उस उस्मान के चेहरे पर बड़ा इत्मीनान नजर आया। वो बड़े इत्मीनान से बोला, मैम, पीछे ही मेरा कपड़ों का बाकड़ा यानी ख्वांचा है, यहाँ अक्सर आता रहता हूं। मैं इनमें से बहुतों को जानता हूं, मगर मैडम एक बात मेरी समझ में अभी तक नहीं आ रही है कि अगर वो संदास साफ सुथरा रखता है तो इसमें इनको भला क्या तकलीफ हो रही है, और अगर ये लड़का मेरे संदास में जाने से पहले उसे पानी से साफ कर देता है तो भला इसमें मेरा क्या कसूर। पहला साथी बोला, मैडम इनसे पूछना ही बेकार है, सही जवाब तो ये कमीना ही दे सकता है, ये इतना भेदभाव क्यों करता है। इस वक्त संदास वाला मायूस नजर आ रहा था, मगर अब उसके तेवर बदल रहे थे। उसने कहना शुरू किया, मैडम 2 मिनट दो, मैं पूरी बात बताता हूं। बगल में खड़ा पुलिस वाला बोला, डांटर, अबे तू और इतनी देर लगाएगा, जल्दी बोल। वो बोला, हवलदार साहब, इन भाई साहब की पीछे कपड़े की दुकान है, रोजाना ये अक्सर 1 नंबर करने यहां आते। उसने छिंगली का इशारा करते हुए कहा। दूसरा पुलिस वाला बोला, आगे बोल आगे। 1 महीने पहले की बात कि 11 बजे 1 नंबर इन्हें वही फिर छिंगली उठाई, करने के लिए आए, 1 रुपया दिया, अंदर गए। जब बेसिन बिजी थे, सब बेसिन बिजी थे, जहां पर खड़े होकर लोग पेशाब करते हैं, डेट इज कॉल्ड बेसिन, और भी लोग लाइन में खड़े थे। मैंने देखा कि यार कहीं इनका पेशाब न छूट जाए, तो जैसे ही एक संदास खाली हुआ, मैंने उनसे कहा, चाचा संदास में चले जाओ। ये अंदर गया और वापस आने पर उन्होंने मुझे 4 रुपए देने चाहिए। मैंने ये समझकर लेने से इनकार कर दिया कि ये 1 रुपया 1 नंबर से इशारा किया तो पहले ही दे चुके हैं, ठीक है ना। उन्होंने बेसिन में न करते हुए संदास में कर लिया तो क्या हुआ। ये 4 रुपए देने के लिए जिद करने लगे। बोले, बेटा तुम दूसरों से 5 रुपए लेते हो ना, मैं भी संदास में गया था, मैंने जब 2-4 रुपए लेने से इनकार, वो 4 रुपए लेने से इनकार किया तो उन्होंने कहा, जो कुछ उन्होंने कहा वो सुनकर तो मेरी खोपड़ी घूम गई। मुझे अब ऐसा लग रहा है कि पुलिस के साथ साथ गांव की भीड़ का भी तजस्सुस बढ़ गया। सबके सब खामोशी से पूरी तवज्जो के साथ उसकी बात सुन रहे थे। इस दरमियान स्टेशन से होने वाले ऐलानात और आती जाती लोकल गाड़ियों की आवाज के अलावा और किसी किस्म का कोई शोर सुनाई नहीं दे रहा था। कृपया सही टिकट यात्रा से यात्रा करें, बिना टिकट यात्रा करना सामाजिक अपराध है। वो लड़का फिर कहने लगा, इन्होंने कहा, बेटा मैं गया तो पेशाब करने के लिए ही था, मगर अंदर जाकर मुझे संदास का एहसास हुआ तो मैं चंद सेकंड बैठ गया और फिर संदास करके ही बाहर निकला। तुम पेशाब के लिए 1 रुपया लेते हो और संदास के लिए 5। जाते वक्त मैंने तुमको 1 रुपया दिया था और बाकी ये 4 रुपए। मैडम एक बात और है, और वो ये कि ये जितने खड़े हैं ना, अपनी औकात दिखा रहे हैं ना, इनमें से बहुत सारे ऐसे हैं जो आते हैं, पेशाब संदास करते हैं और आंख बचाकर बिना पैसे दिए भागने के चक्कर में रहते हैं। वो एक इशारा करते, उसने एक शख्स की तरफ इशारा किया, कई बार बिना पैसे दिए हुए जा चुका है, मैं उसको पहचानता हूं। ये लोग किस मुंह से बोल रहे हैं?
इनकी इस ईमानदारी के कारण आखिरी जुमला, इनकी वो चाचा की ईमानदारी के कारण उसके बाद से मैंने उनकी सेवा समझकर ऐसा करना शुरू किया है। अब आप बताओ कि इसमें मैं कहाँ गलत हूँ और इनके बाप का क्या जा रहा है। बहुत शुक्रिया। ये हमारे अफसाने का उन्वान है गरीब ईद। सर ये 16 मिनट का था, हमने कुछ कम करके 9 मिनट कर दिया। उन्वान है गरीब ईद। अभी चंद ही दिन हुए थे मुझे अपनी फैमिली के साथ इस इलाके में शिफ्ट हुआ था, मगर पहचान ज़्यादातर लोगों से हो गई थी। शायद इसमें अहम किरदार मेरे पेशे का था। हर कोई जर्नलिस्ट से मिलना पसंद कर रहा था। मैं जहाँ रहता था वो इलाका रीडेवलपमेंट में चला गया था। अब 2 या 3 साल मुझे किराए के मकान में रहना था। किराया मुझे अच्छा मिल रहा था, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना कुछ रकम बचाई जाए। इसलिए ऐसे इलाके में किराए का मकान तलाश किया जो सस्ता था और साथ ही ऑफिस से करीब। मेरे साथ मेरी बीवी शगुफ्ता, एक बेटी सारा और एक बेटा सादिक थे। हम नए शिफ्ट हुए तो लोग मिलने आए। जब सुना कि मैं मुंबई के ही किसी अखबार में बतौर क्राइम रिपोर्टर काम करता हूँ तो वो सभी खुश हुए कि चलो अपने इलाके के मसाइल भी अखबार में आ जाया करेंगे। सॉरी, इलाके का नाम तो बताया ही नहीं। ये गोंडी है। जी हाँ, ये गोंडी है जहाँ गुर्बत, गंदगी, भुखमरी, गर्ज क्या नहीं, गुर्बत की हर तस्वीर यहाँ नजर आती है। एक शाम मैं घर पहुँचा तो एक खातून को मौजूद पाया जिनके मुताल्लिक शगुफ्ता ने बताया कि ये नसरीन भाभी हैं। अपने 7-8 साल इकलौते बेटे निसार के साथ रहती हैं जो करीब ही स्कूल में पढ़ता है। उनके शौहर ने दूसरी शादी कर ली और दूसरी बीवी को लेकर अफ्रीका चला गया है। नसरीन भाभी की गुजर बसर मुश्किल से होती है। सामने वाली गली की किसी खोली में रहती हैं। मुझे नसरीन भाभी के हालात जानकर दुख हुआ। एक रात बिजली चली गई थी। फोन करने पर मालूम हुआ कि करीब ही लोटस कॉलोनी का ट्रांसफार्मर जल गया है। 2 घंटे लग जाएंगे बिजली बहाल होने में। शिद्दत की गर्मी में 2 घंटे गुजार पाना मुश्किल था। अभी रात के 10 ही बजे थे। चुनांचे मैं अपने बेटे सादिक को साथ लेकर बाहर निकल गया कि कुछ देर टहल आऊं। थोड़ी देर तक मैं बेटे को लिए इधर उधर टहलता रहा। फिर सोचा क्यों ना मेन रोड की किसी होटल में चाय पी लूं। मेन रोड पर जाने के लिए एक गली से गुजर रहे थे कि एक घर के दरवाजे पर मैंने निसार को खड़ा देखा। मेरे बेटे सादिक ने बताया कि ये इसका घर है। तब तक नसरीन भाभी भी बाहर निकल आई। शायद निसार ने मुझे देखकर अपनी वालदा को बता दिया था। सलाम दुआ के बाद नसरीन भाभी ने कहा, भाई साहब आप पहली बार मेरी घर की तरफ आए हैं, चाय पीकर जाइए। मैं तो चाय पीने की गर्ज से ही मेन रोड जा रहा था। शुक्रिया कहते हुए उनके घर में दाखिल हुआ। नसरीन भाभी के घर में पहली बार आया था, मगर ऐसा घर भी मैंने पहली ही बार देखा था जो शुरू होते ही खत्म भी हो जाता है। ये एक 6x7 की खोली रही होगी। दाईं तरफ 3 फीट की जगह और बाईं तरफ एक पलंग रखी हुई थी। कुछ गठरियां, स्कूल बैग, कपड़े पलंग पर करीने से रखे हुए थे। नीचे खाली जगह पर स्टोव था। साथ ही पानी का एक छोटा सा ड्रम और ढेर सारी पानी की कुछ खाली भरी बोतलें। मैं ताज्जुब से ये मंजर देख ही रहा था कि आवाज आई, भाई बैठिए ना, बस 2 मिनट में चाय हाजिर है। मैंने खोली देखते हुए नसरीन भाभी से सवाल किया, इतनी बोतलें क्यों रखी हैं? पानी भर के लाती हूँ भाई, फिर कोई मटका भी नहीं है, इसलिए ऐसे ही रखती हूँ। पानी पीते जाते हैं, बोतलें खाली होती जाती हैं, फिर दूसरे दिन भर लाते हैं। क्या मतलब, पानी पाइप से नहीं लेते? मैंने सवाल किया। नहीं भाई, पाइप से लेने के लिए महीना 200 रुपया देना होगा, मैं कहां से दूंगी? बड़ी मुश्किल से तो निसार को पढ़ा रही, तो पानी कहां से लेती हैं आप? ये सब बोतलें मानपुर रेलवे स्टेशन से भर के लाती हैं। मैं ये सुनकर दंग रह गया। जहां ये खोली थी वहां से तकरीबन 3 किलोमीटर की दूरी पर
یہ اسٹیشن واقع ہے۔ کچھ ہی دیر میں نسیم بھابھی نے چائے میرے حوالے کی۔ کسی طرح جلدی میں نے حلق میں اتاری اور پولی سے باہر یہ سوچ کر نکل آیا، اس دنیا میں کتنا غم ہے، میرا غم کتنا کم ہے۔ میں کئی دنوں تک اسی فکر میں لگا رہا کہ کیسے نسیم بھابھی کی پریشانیاں دور ہوں، مگر بہت کچھ میرے بس میں نہ تھا۔ پھر بھی میں نے حاجی چاچا سے کہہ کر نسیم بھابھی کو بھی 5 منٹ کے لیے پائپ دینے کے لیے کہا۔ 100 روپے مہینہ میں دے دیا کروں گا۔ میں جرنلسٹ تھا اور میری روزی روٹی اخبارات سے جڑی ہوئی تھی، اس لیے روزانہ میرے پاس کئی اخبارات آیا کرتے تھے۔ پڑوسیوں کو معلوم ہو گیا تھا کہ میرے گھر ردی جمع رہتی ہے، چنانچہ کسی ضرورت کے وقت وہ آتے اور مجھ سے مانگ لیتے۔ عید کے 2 روز باقی تھے۔ پوری گلی میں شور شرابہ تھا۔ بس میں فلاح والوں نے اندر والی سڑک سے لے کر پوری گلی میں ڈیکوریشن کر دیا تھا۔ جسے دیکھیے وہ شاپنگ میں مصروف تھا، غرض ہر کوئی عید کی تیاریوں میں تھا۔ اخبار کے ڈائریکٹر صاحب اب تک اسپتال میں تھے، مگر ان کے فرزند ارجمند نے اخبار میں کام کرنے والے سبھی افراد کو تھوڑے پیسے دیے، اس وعدے کے ساتھ کہ باقی عید کے 2-4 روز بعد ادا کر دیا جائے گا۔ مغرب بعد میں گھر پہنچا تو قریبی مسجد سے اعلان ہو رہا تھا کہ چاند ہو گیا ہے اور کل عید ہے۔ کھانے کے بعد ہم لوگوں نے بھی شاپنگ کی۔ شگفتہ اور بچوں کے کپڑے، چپلیں، جوتے، سوئیاں، مہندی وغیرہ سب خریدا گیا۔ شگفتہ نے بہت ضد کی کہ میں اپنے لیے بھی پٹھانی سوٹ خرید لوں۔ شگفتہ، بچوں کے اور تمہارے کپڑے وغیرہ زیادہ ضروری ہیں۔ تو ٹھیک ہے، پھر ہمارے لیے کیوں لے لیا آپ نے؟ آپ نہیں پہنیں گے تو ہم بھی نہیں پہنیں گے۔ چلو بھائی اب صبح دیکھوں گا۔ نہیں دیکھنا نہیں ہے، صبح نماز بعد کرتا پیجامہ لے لیجیے گا، پھر ہم لوگ امی کے یہاں چلیں گے۔ ٹھیک ہے بابا۔ صبح 8 بجے نماز عید با جماعت ادا کی، لوگوں سے گلے ملے۔ مسجد و اطراف میں بچے بوڑھے سبھی کے چہرے دمکتے نظر آ رہے تھے۔ بھلا ایسا کیوں نہ ہوتا، پورے مہینے انتظار رہتا ہے عید کا، عید خوشیوں کا دن ہے۔ بعد نماز عید پڑوسیوں سے مل کر گھر آیا۔ گھر میں داخل ہوتے ہی شگفتہ نے کہا 10 بجے تک جا کر سوٹ خرید لیجئے، پھر امی کے ہاں چلا جائے گا۔ ارے بھائی اب کیا کہوں، میرے پاس قریب 2000 روپے بچے ہیں اور عید کے 3-4 دن بعد آفس سے بقیہ پیسے مل جائیں گے۔ کوئی بات نہیں، 1000 روپے تک سوٹ آ جائے گا اور باقی 1000 3-4 دن کے لیے کافی ہیں۔ شگفتہ کے ساتھ بچے بھی ضد کرنے لگے۔ سب کے زور دینے پر میں نے 1000 روپے شگفتہ کے حوالے یہ کہتے ہوئے کہا، یہ رہے 1000 روپے، 2-3 دن خرچ سنبھالنا، 1000 میں رکھ لیتا ہوں، ابھی کچھ دیر میں جا کر پٹھانی یا کرتا پیجامہ خرید لوں گا۔ میرے یہ کہنے پر سب خوش ہوئے اور ہم سبھی سوئیاں پینے لگے۔ ابھی کچھ دیر ہی گزری تھی کہ نسرین بھابھی کا بیٹا آیا۔ اس نے کہا گھر میں کچھ کام ہے، امی نے ردی پیپر مانگے ہیں اور کہا ہے زیادہ پیپر لانا، صفائی کرنا ہے۔ آؤ بیٹھو بیٹا، شیر خورما پی لو، پھر ردی پیپر لے جانا۔ میں نے اس سے کہا نہیں انکل، امی بولی ہے صادق کے ہاں سے ردی پیپر لے کر جلدی آ جاؤ۔ اچھا بیٹا، ردی پیپر امی کو دے کر آ جانا۔ یہ کہتے ہوئے میں نے گھر میں جمع سارے ردی اخبارات نکال کر ایک جمبو تھیلی میں رکھ کر اس کے حوالے کیے کہ کہیں گرا نہ دے۔ وہ دونوں ہاتھوں سے تھیلی سنبھالے ہوئے چلا گیا۔ شگفتہ نے مجھے یاد دلایا 10 بج رہے ہیں، جائیے کرتا پیجامہ لے کر جلدی آ جائیں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میں باہر نکلا۔ سوچا چلو سگنل کی طرف جو عید بازار ہے وہیں سے خرید لیتے ہیں۔ ابھی میں گلی سے نکل کر مین روڈ کی طرف جانے ہی والا تھا کہ میری نظر نثار پر پڑی، جو سامنے ایک دکان پر کھڑا تھا اور دکان والا اس جمبو تھیلی سے ردی اخبارات نکال کر توڑ رہا تھا، جو کچھ دیر پہلے میں نے اپنے گھر پر نثار کے حوالے کیے تھے۔ دکاندار نے ردی کو تول کر کچھ روپے نثار کے ہاتھوں پر رکھ دیے۔ نثار دکان سے نکل کر سڑک پر آیا تو میں نے اسے روک لیا۔ یہاں کیا کر رہے ہو بیٹا؟ میں نے سوال کیا۔ امی بولی یہ ردی بیچ کر 5 روپے کا دودھ، 2 روپے کی چائے پتی اور 5 پاؤ لے کر آ، تو میں نے ردی دکان والے کو دے دیا اور دودھ لینے جا رہا۔
दुकान वाले ने रद्दी पेपर के कितने रुपए दिए? वो अंकल ने 40 रुपए दिए। निसार ने जवाब दिया, क्यों बेटा, तुम लोग चाय नहीं पिए? नहीं अंकल, अम्मी के पास पैसा नहीं है और रात में हम लोग खाना भी नहीं खाए। क्यों, तुम्हारी अम्मी ने खाना नहीं पकाया था? नहीं अंकल, बहुत दिन से अम्मी की तबीयत खराब है और पैसा भी नहीं है, इसलिए अम्मी खाना नहीं पकाती। हम लोग रोजाना रोजा मस्जिद में खोलते थे और खाना भी वहीं खा लेते थे। कल शाम पानी नहीं मिलता, इसलिए पानी लेने के लिए मानपुर स्टेशन गए थे। देर से आए तो खाना खत्म हो गया, हम लोग भूखे रहे। मैं रद्दी अम्मी के पास ले गया तो अम्मी बोली, जल्दी से बेचकर दूध पाव ला, फिर हम चाय पीते। निसार की बातें मेरे लिए किसी ताजियाने से कम न थी। मैंने जेब से 1000 रुपए निकालकर उसकी जेब में रखते हुए समझाया, बेटा ये रुपए गिरा मत देना, सीधे अपनी अम्मी को जाकर दो, शीर खुरमा खाओ और अपने लिए अम्मी से कपड़ा लाने के लिए कहना, जाओ पहले घर जाओ। निसार जेब थामे खामोशी से तेज कदम उठाते हुए अपने घर की तरफ चला गया। मैं वहीं खड़ा सोचता रहा कि निसार गरीब है या मैं गरीब हूं जो अपने पड़ोसी की खबरगिरी न कर सका, या माशरा ही गरीब है जो अंधा बहरा हो चुका है, या फिर ये ईद ही गरीब है। शुक्रिया। मेरा अफसाने का उन्वान है कशमकश। और फिर एक बार से इन तमाम वारदातों के पीछे सीमी का हाथ बताया जा रहा है। टीवी पर न्यूज फ्लैश हो रही, ऑपरेशन की तैयारी हो गई डॉक्टर साहब, पीछे से नर्स ने आवाज। हाँ चलो मैं आया, डॉक्टर जमील ने जवाब दिया। मुंबई लोकल ट्रेनें मुंबई की लाइफ लाइन कही जाती है, उनके रुक जाने से मानो पूरी मुंबई थम सी गई। डॉक्टर जमील को एहसास हुआ कि मरीज का ऑपरेशन करना इस खबर से कहीं ज्यादा जरूरी काम है। ऐसी खबरें तो आजकल आम हो गई हैं और न्यूज चैनल वाले तो अच्छी खासी बात का भी पतंगा बना देते हैं। ये सब सोचते हुए डॉक्टर जमील ने ऑपरेशन थिएटर की जानिब कदम बढ़ाए। अब वो मरीज कृष्ण मोरे के बारे में सोच रहे थे जो इसी हादसे का शिकार है और काफी जख्मी भी है, जिसका ऑपरेशन करना निहायत ही जरूरी है। डॉक्टर जमील को पूरा भरोसा था कि ये ऑपरेशन जरूर कामयाब होगा। अस्पताल के काम से फुर्सत पाकर डॉक्टर जमील अपने क्वार्टर में लौट आए। अभी मुंह हाथ धोकर फारिग ही हुए थे कि दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खोलने पर डॉक्टर एहसान दंडनाते हुए क्वार्टर में घुस चले आए। उनके चेहरे से साफ जाहिर हो रहा था कि किसी से गर्मा गर्म बहस कर लौट रहे हैं या वाकई किसी से लड़कर आ रहे हैं। क्या हुआ डॉक्टर साहब, आप बड़े गुस्से में दिखाई दे रहे हैं? डॉक्टर जमील ने अपना शक जाहिर किया। आप तो पूछिए ही मत, डॉक्टर एहसान ने टका से जवाब दे दिया। डॉक्टर जमील ने एक और कोशिश की, आखिर हुआ क्या बताएंगे भी? क्या आपको पता नहीं बम्बई में क्या हो रहा है? डॉक्टर एहसान गुस्सा फिर एक बार परवान चढ़ने लगा। डॉक्टर जमील ने उनके गुस्से का पारा नापते हुए जवाब दिया, पता है, लेकिन हम लोग कर भी क्या सकते हैं? जख्मियों का इलाज और इससे ज्यादा क्या? हाँ वो तो है ही, पर हमारा भी तो कोई फर्ज बनता है ना हमारे भाइयों के लिए। डॉक्टर एहसान गुस्सा अपने उरूज पर था। ये जानते हुए डॉक्टर जमील को उनकी बात समझ में नहीं आई। हमारे भाइयों के लिए? मैं समझा नहीं। डॉक्टर साहब कभी अस्पताल से बाहर भी निकल आया कीजिए और देखिए दुनिया में क्या हो रहा है। दुनिया को छोड़िए, आपको तो ये भी नहीं मालूम हिंदुस्तान में क्या हो रहा है। कमान से निकले हुए तीर की तरह डॉक्टर एहसान डॉक्टर जमील पर बरस पड़े। सरकार जो मुसलमानों के खिलाफ साजिश कर रही है, बेगुनाहों को बिला वजह इस हादसे का जिम्मेदार बताकर सलाखों के पीछे डाल रही है, उन्हें सिर्फ मुसलमान ही दिखाई दे रहे हैं। और डॉक्टर जमील ने उनका ब्लड प्रेशर बढ़ता देखकर रोकने की कोशिश की। नहीं डॉक्टर साहब, हम बस हाथ पर हाथ रखे देखते रह जाएंगे और ये लोग सारे हिंदुस्तान क्या सारी दुनिया से मुसलमानों को सफाया कर देंगे। डॉक्टर साहब अपना ब्लड प्रेशर बढ़ाने से क्या होगा, आप ही बताइए, हम क्या कर सकते हैं? डॉक्टर जमील ने हथियार डाल दिया। हम क्या कर सकते हैं ये पूछिए, हम क्या नहीं कर सकते? डॉक्टर एहसान का चेहरा आहिस्ते आहिस्ते बदल रहा था। डॉक्टर जमील ने तब्दीली महसूस करी। आप खुलकर बताइए, आप कहना क्या चाहते हैं? हम भी इनका सफाया कर देंगे। डॉक्टर एहसान का चेहरा तकरीबन बदल चुका था, कोई अलग ही शय जिससे डॉक्टर जमील बचाने की कोशिश कर रहे थे। डॉक्टर साहब हमारा काम जिंदगी देना है, लेना नहीं। और डॉक्टर एहसान बीच में बोल पड़े, बस वो कहते हैं ना कि कलयुग है, हमें भी अपने बेगुनाह मुसलमान भाइयों का बदला लेना है। यहाँ जख्मी ज्यादातर जख्मी गैर मुस्लिम है, अगर हम उनका इलाज ना करें तो। और डॉक्टर जमील ने अपने मुकाबले को पहचान लिया।
वो किसी डॉक्टर से नहीं बल्कि फांसी देने वाले एक जल्लाद से बात कर रहा है। डॉक्टर साहब, शायद आपकी तबीयत ठीक नहीं है या आपने नशा किया है। हाँ, शायद नशा ही है, क्योंकि नशे में ही इंसान सच बोलता है। आप ये बताइए, आप नया साथ देंगे या नहीं? डॉक्टर एहसान का सवाल लफ्ज़ आखिर था। नहीं डॉक्टर एहसान, आप शायद अपने नाम का मतलब भूल गए, पर मैं नहीं। डॉक्टर जमील ने इस पूरे एतमाद जवाब के बाद शायद ही अब और कुछ सुनना या कहना बाकी रह गया था। डॉक्टर एहसान ने ये बात महसूस कर ली थी। कुछ देर खामोशी में वो दोनों आंखों ही आंखों में एक दूसरे को टटोलते रहे और आखिर डॉक्टर एहसान को अपने कदम वापस लेने पड़े और वो अपने पैर पटकते दरवाजा धकेलते हुए कमरे से निकल गया। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, बल्कि डॉक्टर जमील ने डॉक्टर एहसान में इस तरह की तब्दीली कई बार महसूस की थी, पर इस बात की गहराई तक पहुंच चुके थे। डॉक्टर एहसान का शैतानी रूप देखकर वो खुद भी कांप गए। क्या ऐसा हो सकता है? क्या वाकई कलयुग है जो एक डॉक्टर अपने मरीज को बचाने के बजाय मारने की सोचे? जब एक मरीज अपने आप को एक ऐसे शख्स के सुपुर्द कर देता है जिसे वो जानता तक नहीं, बस जब एक मरीज अपने आप को एक ऐसे शख्स के सुपुर्द कर देता है जिसे वो जानता तक नहीं, बस जानता है तो उस सफेद लिबास को जो किसी भी बुराई, फितना या जुर्म से बेदाग है, तो दूसरी तरफ उसी लिबासे को उड़ने वाला कोई डॉक्टर नहीं बल्कि उसके अंदर छुपा एक ऐसा काला जल्लाद है जिसने सफेदी सिर्फ बनाए नाम अपने ऊपर पोत रखी है। डॉक्टर जमील उसी कश्मकश में मुब्तला अपने बिस्तर पर पड़े पड़े न जाने कब नींद की आगोश में चले गए। कृष्ण मोरे आखिरी मरीज था उस मुंबई लोकल ट्रेन बम धमाके का जिसे बचाया जा सका था, वरना तकरीबन सभी मारे जा चुके थे। मारे के अस्पताल में मुर्दे ही तो लाए गए थे। आज इस वाक़े को 1 महीने से ज्यादा हो चुका है, पर उस दिन से लेकर आज तक डॉक्टर जमील और डॉक्टर एहसान में बातचीत बंद है। सिर्फ जितनी जरूरत उतनी बात। उस बम धमाके के बाद तो मुंबई में सुकून था, पर दहशत पसंदों के लिए तो कोई दुनिया पड़ी है और न जाने क्यों हिंदुस्तान तो जैसे उन दहशत पसंदों के लिए मरकज बना हुआ है। मालेगांव बम धमाका इसी की एक कड़ी है और बकौल डॉक्टर एहसान जैसा क्या होता आया है, इसमें भी बेगुनाह मुसलमानों को ही निशाना बनाया जा रहा है। डॉक्टर जमील ऐसा नहीं सोचते, वो तो यही जानते हैं कि दहशत पसंदों को मजहब नहीं होता, वो सब दिमागी मरीज है जिनका इलाज मुमकिन नहीं। सुबह ड्यूटी पर आते ही रोजमर्रा के कामों में जुटे डॉक्टर जमील की नजर डॉक्टर एहसान पर पड़ी, जो काफी मुस्तैदी से किसी मरीज के इलाज में कोशा थे। उन्हें इस तरह से काम मिलता हुआ डॉक्टर जमील को एक रूहानी इत्मीनान महसूस हुआ कि शायद अभी अपना नजरिया तब्दील कर दें, क्योंकि रूहानी इत्मीनान महसूस हुआ कि शायद अब ये अपना नजरिया तब्दील कर दे, क्योंकि बात ही ऐसी थी। आज सुबह ड्यूटी पर आने से पहले ही टीवी पर न्यूज फ्लैश हो रही थी कि मालेगांव बम धमाके में असल मुस्लिम गिरफ्तार किए जा चुके हैं और पहली मरतबा किसी मुसलमान तंजीम के बजाय एक हिंदू तंजीम मंजर आई थी। और चौंकाने वाली बात तो ये है कि उसे लीड एक औरत कर रही है। खैर, अपने काम से फुर्सत पाकर डॉक्टर जमील दोपहर का खाना खा रहे थे कि सामने डॉक्टर एहसान आते दिखाई दिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इतने ऐसे बाद इस गर्मजोशी भरे सलाम से डॉक्टर जमील के चेहरे पर मुस्कान आ गई। और कब आई ड्यूटी पर? डॉक्टर एहसान ने बड़े तफात से सवाल डाल दिया। वही जो ड्यूटी का वक्त है मेरा। डॉक्टर जमील ने उतने ही इत्मीनान से जवाब दिया, क्योंकि वो जानते थे आज मौसम सर्द ही रहेगा। तो क्या सुबह की खबरें देखी आपने? इस पर डॉक्टर जमील अपने अंदाजे पर अफसोस करना पड़ा। जी देखी। डॉक्टर जमील मौसम सर्द ही रखना चाहते थे। अब बोलिए, क्या बोलते हैं? देख लिया ना आपने? देखते जाइए, अगले पिछले सारे मामला अगर उनका हाथ ना निकले तो। डॉक्टर एहसान तो जैसे अपनी जमीन हमवार करके ही आए थे जंग के लिए। बिल्कुल डॉक्टर साहब, जो सच है वो तो सामने आ ही रहा है। मुझे भी खुशी है, लेकिन क्या? डॉक्टर एहसान के चेहरे ने एक बार फिर अपनी शक्ल तब्दील करना शुरू कर दी। लेकिन मैं ये भी नहीं कहता कि इससे पहले जो लोग पकड़े गए हैं वो सब के सब मासूम ही होंगे। हाँ, कुछ बेगुनाह जरूर हो सकते हैं। डॉक्टर जमील ने बहुत संभल कर अपनी बात रखी। कुछ लोग? डॉक्टर साहब, आप अब भी ये कह रहे हैं जबकि पूरी दुनिया के सामने सच्चाई आ गई है। आप देखते जाइए कि कैसे एक गुनहगार फांसी के तख्ते तक पहुंचता है। डॉक्टर जमील ने इससे आगे कुछ कहना और बोलना जरूर समझा। वो जानते थे कि डॉक्टर एहसान को अपनी बात नहीं समझा पाएंगे और शायद डॉक्टर एहसान की बात भी वो खुद ना समझ रहे हो। डॉक्टर जमील ने बात काट कर डॉक्टर एहसान को खाने के लिए कहा और याद दिलाया कि उन्हें एक जरूरी ऑपरेशन के लिए भी जाना है। आहिस्ता आहिस्ता हिंदू दहशतगर्द का एक बड़ा चेहरा सामने आने लगा, जिसमें मुलविस लोगों में बड़े बड़े नेता भी शामिल हैं। वही इन सब इंकशाफात के साथ साथ डॉक्टर एहसान भी डॉक्टर जमील पर हावी होते जाए थे। डॉक्टर जमील का कुछ हद तक डॉक्टर एहसान की बातों से इत्तेफाक भी करना पड़ा, जैसे वाकई मालेगांव के बम धमाके में उन्हीं लोगों का हाथ था। उसके पीछे हिंदू दहशतगर्द का बहुत बड़ा नेटवर्क है जो एक अरसे से सरगर्म में अमल है
और जो किसी न किसी तरह इस मुल्क की एक बहुत बड़ी सियासी पार्टी से जुड़ा हुआ भी है। 26 नवंबर की वो शाम बम्बई में आने वाले शायद ही कभी भूल हुआ है, जो एक ऐसा सानिया की शुरुआत कर चुकी थी जिसका अंजाम शायद किसी आखिरी जंग हो। अस्पतालों में मरीजों का तांता लगा हुआ था, बेताब लाशें, जख्मी और अपनों की तलाश करते रिश्तेदार। एक हुजूम बरपा था, और ये उस हुजूम से भी कई गुना बड़ा था जो डॉक्टर जमील ने लोकल ट्रेन बंद आंखों में देखा था। इस बार इसमें आम गरीब आदमी के साथ साथ पुलिस के कुछ आला अफसर भी शामिल थे। अस्पताल के सारे कायदे अपने अपने फर्ज पर अंजाम देने में मशगूल थे। इसमें डॉक्टर एहसान भी थे, जो इस हमले की वजह जानने से ज्यादा अपने मरीजों को बचाने में ध्यान दे रहे थे। पर डॉक्टर जमील, उनका ध्यान तो कहीं और था। टीवी पर न्यूज फ्लैश कर रही थी। इस हमले में कई अहम बड़े अफसर शहीद हो गए, जिनमें एटीएस के चीफ हेमंत करकरे, सालस का काम थे, और लेकिन डॉक्टर जमील उस एक नाम के आगे कुछ और सुन ही ना सके। उनके दिमाग में सिर्फ एक नाम गूंजता रह गया, हेमंत करकरे। वही हेमंत करकरे थे जिन्होंने पहली बार हिंदू दहशतगर्द का चेहरा पूरी दुनिया के सामने बेनकाब किया, और उन्हीं की कोशिश के बदौलत आज 7वीं प्रज्ञा जैसी दहशतगर्द सलाखों के पीछे थी। क्या होगा? क्या अब उन्हें अपने किए की सजा नहीं मिलेगी? कौन लड़ेगा उनके खिलाफ? कौन है इस हमले के पीछे? क्या वाकई ये हमला पाकिस्तान का करवाया गया है, जैसा कि आज सारे न्यूज चैनल बता रहे हैं, या फिर हेमंत करकरे जैसे ईमानदार अफसरों को मारने की एक ख्वाहिश थी? इस तरह के सवालों ने डॉक्टर जमील को अपने अंदर जकड़ लिया। वो टीवी के सामने एक मुंह किए खड़े उस शख्स को बड़ी असर से देखे जा रहे थे, तस्वीर स्क्रीन के कोने में फ्लैश हुई थी। डॉक्टर साहब जल्दी चलिए, अर्जेंट पेशेंट है। पीछे से नर्स की आवाज आई। डॉक्टर जमील ने मुड़कर नर्स से पूछा, क्या नाम है मरीज का? नर्स ने डॉक्टर जमील के चेहरे में एक खास तब्दीली महसूस की। जी वो राम नायक। नर्स डॉक्टर जमील के चेहरे की तब्दीली को देखकर घबरा सी गई। चलो मैं अभी आया। डॉक्टर जमील ने मुड़कर एक बार फिर टीवी पर नजर डाली, जहाँ अब भी हेमंत करकरे की तस्वीर फ्लैश करी थी। हेमंत करकरे जैसे ईमानदार अफसर की मौत ने डॉक्टर जमील जैसे शख्स को भी झिझोड़ कर रख दिया। अपने अंदर देखते हुए ज्वालामुखी और फर्श के हाथों मजबूत वो मुड़कर ऑपरेशन थिएटर की जानिब पड़ने लगा। वहीं एक कैबिन में डॉक्टर एहसान किसी जख्मी की मरहम पट्टी कर रहे थे। दूसरी जानिब टीवी पर न्यूज फ्लैश हो रही थी, और डॉक्टर जमील आहिस्ता आहिस्ता ऑपरेशन थिएटर की जानिब बढ़ रहे थे। एक सामाजिक अफसाना मैं आप लोगों के जहन पे जोर डालने के लिए मजबूर नहीं करूँगा। ये हर घर की कहानी है, हर शख्स की नफ्सियात है। एक अफसाना आपके सामने पेश कर रहा हूँ, बउनवान दायरा। 0 सुबह नाश्ते पर बेगम रोशन आरा ने जिक्र छेड़ा। उस बंगले के बारे में कुछ पता चला? हाँ, 2-1 रोज में सारी बातें तय कर लूंगा। कैसा बंगला? अम्मी ने हैरत से पूछा। मैं किसी अच्छी जगह यानी पॉश इलाके में बंगला टाइप रिहाइश तलाश कर रहा हूं। अब देखिए ना अम्मी, मुझे यहाँ रहना कुछ अच्छा नहीं लगता। ये इलाका पुराने शहर में शुमार होने लगा है। तंग गलियां, बेतरतीब, कच्चे और खुले मकानात, जा बजा पानी के गड्ढे, जिधर देखो उधर कूड़े का ढेर, गंदगी, गिलाजत, बदबू, उफ तवा। अब कल ही की बात है, गली में मेरी कार क्या दाखिल हुई कि धूल में लथपथ खेलते हुए बच्चे मेरी कार के तरफ जमा होना शुरू हुए, और पास पड़ोस के लोग आंखें फाड़कर यूं देख रहे थे जैसे इस गली में कभी कार आई ही ना हो। क्या हुआ इस मकान को? इस महल्ले का सबसे पुख्ता, खूबसूरत और 2 मंजिला मकान है। अम्मी ने मुदाखलत करते हुए कहा, आखिरकार ये मकान किराए का है ना अम्मी? बेटा, तेरी भेजी हुई रकम में से कुछ पसंदाज करके मैंने एक प्लॉट खुली जगह ले रखी है। अगर तुम इन जाहिरी चीजों के पीछे रुपया बर्बाद ना करते तो उस प्लॉट पर एक अपना मकान बना लेते। लेकिन अम्मी, ये सब चीजें
घर में जैसे टीवी, फ्रिज, वीसीआर, वॉशिंग मशीन, फ्रीजर, कीमती फर्नीचर, खालें, खिड़की दरवाजों के लिए इंपोर्टेड पर्दे, बावर्ची खाने के लिए मेयारी ज़रूफ, ड्राइंग रूम की सजावट का सामान, जिसे आप बेकार चीजें समझ रही हैं, आजकल ये सब दिखावे के लिए जरूरी है। बेटा, हम इस पुराने महल्ले में पिछले 25-30 वर्षों से रह रहे हैं और बहुत महफूज हैं। तुम सभी भाई बहन यहीं इसी महल्ले में पैदा हुए, परवरिश पाई, तालीम याफ्ता हो गए, शादियां हो गई सबकी, मैं पोते पोतियां और नवासे नवासियों वाली हो गई। यहाँ के लोगों में हमारी एक शनाख्त है, लोग हमारी इज्जत करते हैं। इनके दिलों में हमारे लिए खुलूस एहतराम और हमदर्दी है। यही वजह है कि हम इतने लंबे अरसे से यहाँ रह रहे हैं और अब आज तुम्हारी नज़र में ये लोग उजड़, गंवार, जाहिल और ये इलाका तंगोतारी, गंदगी और ताफुन से भरपूर हो गया। अम्मी ने अच्छा खासा लेक्चर झाड़ दिया। वक्त की बात है अम्मी, आज खुदा ने हमें अच्छी तरह रहने की तौफीक अता की है, तो हम इस गंदे माहौल में और तंग गली के बीच क्यों पड़े रहें? लोग हमें क्या कहते हैं पता है तुम्हें? बीज घर वाले। आज हमारे पास काफी रुपया पैसा है, हम ऊंची सोसाइटी के पाकीज़ा, साफ और शफाफ इलाके में बड़े से बड़े बंगले में रह सकते हैं। मैंने एक ऐसे ही इलाके में एक बंगला नुमा घर देख रखा है। वहाँ और भी एक से बढ़कर एक खूबसूरत बंगले मौजूद हैं, लेकिन मैं जो बंगला देख कर आया हूँ वो इन सब से छोटा है। किराया 50,000। जवाब में मैंने भी मुख्तसर लेक्चर झाड़ दिया। फजूल खर्ची है बेटा, एकदम फजूल खर्ची। 4-5 वर्षों से खलीज में काम करते हुए आखिर तुमने बचाया ही क्या है? अम्मी की तेवरियां चढ़ गई। मैं बड़े प्यार से उन्हें समझाते हुए कहने लगा, अम्मी, घर सजाने संवारने के लिए मैंने जितनी सारी कीमती चीज़ें खरीद लाया हूँ, ये सब के सब इम्पोर्टेड हैं और कीमती भी हैं। घर के लिए एयर कंडीशन और कार भी खरीद ली है। सेकंड हैंड ही सही, एयर कंडीशन और कार तो है। अब सभी आराम और आसाइश की चीज़ें घर में मैसर हैं। इस बार छुट्टियां गुजारने के बाद जब दोबारा वापस आऊंगा, इसी इलाके में एक छोटा सा बंगला भी खरीद लेंगे। तब तक पास पड़ोस में आपकी जान पहचान भी हो जाएगी। अल्लाह ने चाहा तो सब काम रफ्ता रफ्ता पूरे हो जाएंगे। ना जाने कहाँ से और किस तरह पूरे हो जाएंगे। 50,000 रुपये बंगले का किराया पहले की बनिस्बत 10 गुना ज्यादा किराया अदा करोगे तो बचेगा क्या बेटा? अच्छे पुरखुलूस हमदर्द पड़ोसियों का महल्ला छोड़कर बंगले वालों की बराबरी करना कहाँ की अक्लमंदी है? अम्मी मजीद अंदेशों में गिर गई। अम्मी प्लीज, आप घबराएं नहीं। एक बार आप उन बंगले वालों के दरमियान कदम रखेंगी तो खुश हो जाएंगी और कुछ दिनों बाद वहाँ की तरक्की पसंद ख्वातीन से मेलजोल बढ़ेगा और उन बुलंद ख्यालात की हामिल तालीम याफ्ता सलीकामंद साफ सुथरी औरतों से मिलती जुलती रहोगी तो इस पुराने इलाके की सभी औरतों को भूल जाएंगी। दूसरे दिन पुराने मकान का सामान लारी में लाद कर भिजवा दिया गया। कुछ देर बाद हम अपनी कार में चले गए। जैसे ही मेरी कार उस कुशादा गली में दाखिल हुई, मैं बेगम के चेहरे पर खुशी के तासुरात पढ़ने की कोशिश कर रहा था।
लेकिन वो कुछ मायूस सी लग रही थी। बड़े बड़े बंगलों के पोर्च में खड़ी खूबसूरत कीमती कारों को देखकर मेरी तनी हुई गर्दन अपने आप झुकती चली जा रही थी, क्योंकि इन चमचमाती हुई कारों के मुकाबले तो मेरी कार की कोई औक़त ही नहीं थी। मुसलसिल कार के हॉर्न की आवाज से मेरा ख्याल मुंतशिर हो गया। सामने बंगले के ऊपरी मंजिल से एक चंचल सी खूबसूरत 6-7 साल लड़की तालियां बजा बजा कर खुश हो रही थी, खिलखिलाकर हंस रही थी। एक लम्हे के लिए मुझे लगा शायद वो मेरी छकड़ा नुमा कार को ब्रांडेड न्यू कार के सामने रास्ता रोके बड़ी बेबसी से अचानक बंद पड़ी हुई कार की हालत पर हंस रही है, या पीछे से हॉर्न बजाने वाले कार और उसके मालिक को देखकर खुश हो रही है। मैं कंफ्यूज था। मेरे साथ विराजमान मेरी बीवी भी शर्मिंदा नजर आ रही थी। यहाँ के आलिशान बंगलों के कतार से अलग थलग ये छोटा सा बंगला यहाँ वालों के लिए एक झोपड़ा ही था। सारा दिन बेगम घर का सामान संवारने और सलीके से जमाने में जुट गई। सारे कमरों की सजावट तो हो गई है। अब डाइनिंग रूम में रखने के लिए सिवाय फ्रिज के कोई दूसरी चीज नहीं है। मैंने कहा कल डाइनिंग सेट भी आ जाएगा। हाँ, ये बहुत जरूरी है, वरना ये कमरा तो बिल्कुल खाली खाली सा लग रहा है। अगर कल को पास पड़ोस से कोई मेहमान मिलने आएगा तो क्या कहेगा? बेगम ने सवालिया अंदाज में कहा। पीछे से अम्मी ने लुकमा दिया कि इनके पास कुछ भी नहीं है, यही ना? अम्मी के लहजे में तंज था। हाँ मी, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है कि हमारे पास कुछ नहीं है, लेकिन शहर के अमीर तरीन लोग हमारे पड़ोस में रहते हैं, ऐसा अंजुम के पप्पा कह रहे थे। बहू, तुम और तुम्हारा शोहर दरअसल सटिया गए। मरूबियत गालिब आ गई है तुम दोनों पर। पुराने महल्ले में भी लोग हमें बड़ा समझते थे। सारे महल्ले में हमारा शाहाना रोब था। वहाँ की बात और थी अम्मी, और यहाँ की बात कुछ और है। मैंने जिद कर कहा। दूसरे दिन डाइनिंग सेट भी ले आया। ओहो, अब डाइनिंग रूम बेहतर लगेगा। एक और काम कीजिए, एक टी ट्रॉली भी ले आइएगा। मेहमानों के सामने टी ट्रॉली के बजाय सिर्फ ट्रे में चाय ले जाऊंगी। तो सच कितना अजीब लगेगा। तुम क्यों जाओगी? इनके सामने ट्रॉली लाने ले जाने के लिए कोई नौकरानी ही रख लो। अम्मी का पारा चढ़ा हुआ था। वो बिना कर बोले, जी अम्मी, आपकी बात ठीक है। कल ही एक नौकरानी का बंदोबस्त भी किए देता हूँ। मैंने सादगी से जवाब दिया। दिमाग खराब हो गया है तेरा? तुम दोनों ने मिलकर रुपया पानी की तरह बहा दिया है। बड़े लोगों की बराबरी करने और उनके पड़ोसी कहलाने के शौक ने तुम्हारे होश और हवास छीन लिए हैं। घर चलाने के लिए घर की सजावट पर ही रुपया बहाना अक्लमंदी नहीं है। दूध का खर्च, लाइट बिल, धोबी का बिल, टेलीफोन बिल, बेटी अंजुमन के स्कूल की फीस, ट्यूशन फीस और डॉक्टर के अखराजात और भी दीगर अखराजात को ध्यान में रखकर जिंदगी गुजारी जाती है। ऐसा करें अम्मी, कल से दूध लेना बंद कर दें, काली चाय पी लिया करेंगे। वो सेहत के लिए अच्छी भी होती है
اور پھر دھوبی کو بھی کل کے بعد منع کر دیجیے. اب گھر میں واشنگ مشین جو آ گئی ہے, روشن آرا خود دھو لیا کرے گی اور استری بھی خود کر لیا کرے گی. کیوں؟ ٹھیک ہے نا. میں نے امی سے نظریں چراتے ہوئے بیگم کی طرف دیکھتے ہوئے کہا اور وہاں مزید رکنا مناسب نہ سمجھا. دوسرے کمرے میں آ کر صوفے پر گردن ٹیک کر بیٹھ گیا. مجھے خلیج سے آئے ہوئے تقریباً 3 مہینے ہونے کو آئے ہیں, مگر اب مزید چھٹیاں بڑھانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے, کیونکہ اب بینک بیلنس میں صفر تیزی سے گھٹ رہے ہیں. بینک سے واپسی پر انجمن آرا جو میرے کار میں بیٹھی ہوئی تھی, سرگوشیان انداز میں مجھ سے پوچھنے لگی, پاپا ہاں بیٹا, آپ کو ایک بات بتانی ہے, آپ غصہ تو نہیں کریں گے نا؟ پڑوس والے بنگلے میں میری ایک سہیلی بن گئی ہے. کل وہ ہمارے گھر آئی تھی. میرے انکار کرنے کے باوجود وہ زبردستی اپنے بنگلے میں ساتھ لے گئی اور اس کے بنگلے میں چلی گئی تھی. آپ ناراض تو نہیں ہوئے نا؟ میں نے بیٹی کے گال تھپتپاتے ہوئے محبت بھری چٹکی لی اور کہا, گڈ, ویری گڈ. اپنے پڑوسیوں سے تعلقات بنائے رکھنا چاہیے. ہم بٹیا رانی سے بالکل ناراض نہیں. پاپا, ان کے بنگلے میں بہت سارے روم ہیں, ہر کمرہ خوب سجا ہوا ہے اور بھی بہت اچھے اچھے سامان بھی ہیں. ایک روم میں تو ڈھیر سارے کھلونے ہی کھلونے بھرے پڑے ہیں. ہر روم میں رنگ برنگے موٹے موٹے نرم و دبیز قالین بچھے ہوئے. میرا تو جی چاہتا تھا کہ چھپ کر انہیں اپنے ہاتھوں سے چھو کر دیکھوں. مجھے اس پر چپلوں سمیت چلتے ہوئے جھجک محسوس ہوئی. اور بیٹھنے کے لیے ہر روم میں نرم و آرام دہ بڑے بڑے صوفے بھی سلیقے سے رکھے ہوئے تھے. اس کے بنگلے کے سامان کو دیکھ کر مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ ہمارے پاس ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. ہمارا سامان ایک دم سستا اور بناوٹی لگتا ہے. ہر روم میں چمچماتے ہوئے ایئر کنڈیشنرز. ہمارے پاس تو صرف ایک ہی کمرے میں ہے اور وہ بھی بہت شور کرتا ہے. عورتیں اتنے اچھے لباس پہنی ہوئی تھیں. ہمارے پاس تو اتنے اچھے کپڑے دادی امی اور میری ممی نے بھی نہیں پہنا ہوگا. اس وقت میری حیرت کی کوئی انتہا نہیں تھی کہ جب میری سہیلی نے یہ بتایا کہ وہ سب کے سب گھر کا کام کاج کرنے والی نوکرانیاں ہیں. میری سہیلی کہہ رہی تھی, انجمن آرا جب ہماری کار گیٹ میں داخل ہو کر اس کے بنگلے سے گزرتی ہے تو ہماری کار میں مختلف قسم کی آوازیں نکلتی ہیں. ہماری کار بہت پرانی ہو چکی ہے. اور اس نے یہ بھی کہا, اس کے پپا جب بھی کاروں کے شو روم میں کوئی نئی کار دیکھتے ہیں تو خرید لاتے ہیں. انہیں سیکنڈ ہینڈ سامان اور پرانی کاروں سے الرجی ہے. الرجی؟ یہ الرجی کیا ہوتی ہے پپا؟ میں نے کوئی جواب نہ دیا اور کہا, چلو گھر آ گیا, سیٹ بیلٹ کھولو اور اتر جاؤ. باقی باتیں پھر کبھی. ممی سے کہنا میں بنگلہ اونرز ایسوسی ایشن کی ماہانہ میٹنگ میں جا رہا ہوں. لنچ پر میرا انتظار نہ کرنا, ٹھیک ہے؟ نہیں, آپ بھی میرے ساتھ چلو اور ممی کو خود بتا دینا. میں اکیلی نہیں جاؤں. میں اس کی معصوم ضد کے آگے ہار مان کر ساتھ ہو لیا. آج اس علاقے میں رہائش پذیر بنگلہ اونرز ایسوسی ایشن کی میٹنگ میں پہلی بار شریک ہونے جا رہا تھا. بہت خوشی محسوس کر رہا ہوں زندگی میں یہ میرا پہلا اتفاق تھا کہ اس طرح کی کوئی میٹنگ میں شریک ہونے جا رہا ہوں. مجھے بھی اس علاقے کے رئیسوں کے ساتھ مل بیٹھنے کا موقع مل رہا تھا. قیمتی امریکن برانڈڈ
सूट जेब तन किया, फ्रांस के कीमती जूते पहने, चैनल 55 सेंट का खूब छिड़काव किया, आईने में खुद को कई बार हर जाविये से सेटअप करता रहा। जब इत्मीनान हुआ तो अंदाज़े रईसाना से चलते हुए कदम बढ़ाने लगा। बेगम दूर है, बेगम ने कहा अभी आए और अभी कहाँ जाने की तैयारी हो रही है जनाब? महबूबाना नजरों से मुझे देखकर इतराते हुए पूछा। मैं मुस्कुराकर चुप हो गया। बंगले से नीचे सीढ़ियाँ उतरते हुए मैंने आवाज लगाई, अम्मी, मैं बंगला वालों की ओनर्स एसोसिएशन माहाना मीटिंग में जा रहा हूँ। कुछ दूरी पर वाक़े खूबसूरत बंगले में ये मीटिंग मुनक़िद की गई थी। दरअसल ये बंगला ओनर्स एसोसिएशन के सदर का बंगला था। यहाँ माहाना मीटिंग में दीगर बंगला वाले पड़ोसियों की आपसी शिकायतों पर गौर व खोज किया जाता था और फैसले सादिर किए जाते थे। इस इलाके की खूबसूरती को मजीद निखारने के लिए नए नए मंसूबे बनाए जाते या फिर मजीद सहूलतों की फराहमी के लिए सरकारी इदारों के आला अहदेदारों, अवामी नुमाइंदों की मुंह भराई के बाद यही अहदेदार और नुमाइंदे मजीद आसाइशों की फराहमी की सूरत निकालते हैं। भले ही इस काम में मुस्तहिक लोगों की हक तलफी क्यों ना हो, मगर आज की मीटिंग बुलाए जाने का मकसद इन सब बातों से हटकर सिर्फ और सिर्फ मुझे इस इलाके में रहने के कायदे क़वानीन से आगाह करना था और पड़ोसियों को मुझसे जो शिकायत पिछले महीने से होती चली आ रही थी, इसको दूर करना। इन सबको मेरी पुरानी कार और शोर करता हुआ एयर कंडीशनर से थी। इन दो चीज़ों के अलावा भी दीगर शिकायतें थीं। एतराज़ था, एतराज़ क्या बल्कि यूं कहिए इन सबको एलर्जी थी, एलर्जी। यही लफ्ज़ बार बार हाज़रीन में दोहराया था। यहाँ तक कि खातून ने तो हद ही कर दी, कहने लगी, ओ मिस्टर एनआरआई, आपको तो इतनी भी तमीज़ नहीं कि खुशबू मौसम के लिहाज से लगाई जाती है। ऐसी चिलचिलाती धूप में इतना भड़केला खुशबू और सेंट लगाकर चले आए, क्या तुम्हें एलर्जी नहीं होती? खातून ने अपनी कीमती साड़ी के पल्लू से मुंह ढांप रखा था। मीटिंग हॉल में हल्का सा खैखा गूंज उठा और मैं सिर्फ बगले झांकता रह गया। आज की मीटिंग बुलाए जाने का मकसद बताते हुए मीटिंग के इख्तिताम पर बंगला ओनर्स एसोसिएशन के सदर मोहतरम अपना फैसला सादिर करते हुए कहा, मुझे अपनी सेकंड हैंड कार और एयर कंडीशनर बदलना होगा। इसके लिए आपको 1 महीने की मुद्दत दी जाती है, वरना आपको बाद मुद्दत यह बंगला खाली करना होगा, बल्कि ये इलाका ही छोड़ देना होगा। बाकी आप खुद समझदार हैं, साहब समझ हैं, खुद भी सुकून से रहो और दूसरों को भी सुकून से रहने दो। यही हमारा आज का इज्तिमाई फैसला है। मीटिंग बर्खास्त हो गई और मैं अपना समूह लेकर घर वापस आ गया। पिछले 20-25 दिनों से देख रही हूँ बेटा कि तुम गुमसुम चुपचाप से रहने लगे हो। ऐसा लगता है कि तुम इस बंगले में आकर भी खुश नहीं हो। अम्मी के जुमलों ने मुझे मजीद बेचैन कर दिया। मजबूरन मुझे पिछले महीने मीटिंग में सादिर किया गया फैसला सुनाना पड़ा। मुझे तो पहले ही पता था एक ना एक दिन ये नौबत जरूर आएगी, जिसे हम बंगला समझकर खुशफहमियों में मुब्तला हैं। दरअसल इन पड़ोसियों के लिए एक सादा सा मकान के अलावा और कुछ नहीं है।
میں نے کتنا سمجھایا تمہارے کو. پرانے محلے کے لوگوں میں ہماری بڑی حیثیت تھی, لوگ ہماری عزت کرتے تھے, ہمارے بھلے برے وقتوں کے ساتھی تھے. تم پر رئیسوں کی صحبت میں رہنے اور ان کی برابری کرنے کا جنون جو سوار تھا, اب بھگتو. ان کی برابری کرنے کے چکر میں پڑو گے تو تم قرض کے بوجھ اور دلدل میں دھنستے چلے جاؤ گے, پھر بھی مطمئن نہیں ہو سکو گے. احساس برتری کے نفسیاتی مریض بن گئے ہو تم. ابھی بھی وقت ہے بیٹا, سنبھل جاؤ. چادر دیکھ کر پاؤں پھیلانے میں ہی بہتری ہے. امی کی آواز بتدریج بڑھتی ہوئی سن کر دوسرے کمرے میں موجود بیگم اور میری بیٹی سہمے ہوئے انداز میں چلے آئے. سب کے سب کچھ نہ کچھ سوچ رہے تھے. امی کا چہرہ اندیشوں سے گھرا ہوا تھا. غصے میں وہ بھی ادھر سے ادھر ٹہل رہی تھی. بیگم امی کے آگے پیچھے بے مقصد چکر لگا رہی تھی. بیٹی ہم سب کی بے چینی کا سبب سمجھ چکی تھی. انجمن آرا نے معصومیت سے بھرپور انداز میں کہا, دادی امی, ممی اور پپا, کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ پھر سے ہم اپنے پرانے گھر. انجمن آرا کا ادھورا چھوڑا ہوا جملہ ہم تینوں کی سمجھ میں آ چکا. ہم ایک دوسرے کی جانب دیکھتے ہوئے آنکھوں ہی آنکھوں میں متفق ہو گئے. اگلے روز, اگلے 2-4 دنوں میں, پورے 3 مہینے بعد سامان سے لدا ہوا ٹرک جب انہی تنگ و تاریک گلیوں کے موڑ پر رکا تو سب محلے والوں کے چہرے خوشی سے کھل اٹھے. بچے بڑے سبھی ٹرک پر چڑھ کر سامان اتارنے میں مدد کرنے لگے. انجمن آرا اپنی سہیلیوں میں کے جھرمٹ میں کھیلنے دوڑ پڑی. امی اور بیگم کو محلے کی ساری عورتوں نے ایسے گلے لگا رکھا تھا مانو انہیں بچھڑے ہوئے سال ہا سال گزر گئے ہوں. میں دور کھڑا اپنے ناقص فیصلے پر نادم و شرمندہ تھا. میری حالت اس ملزم کی طرح تھی جس کا جرم ثابت ہونے کے باوجود بھی سبھی اہل محلہ نے دل سے معاف کر دیا. شکریہ. اس کے پروگرام کے صدر اور ہمارے مہمان جناب حسین طلوائی صاحب سے خصوصی توجہ بھی چاہتا ہوں اور ان سے اجازت بھی چاہتا ہوں کہ میں ایک چھوٹا سا افسانہ آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں. افسانے کا عنوان ہے بے روزہ دار. یہ ایک چھوٹا سا تمثیلی افسانہ ہے. سماعت فرمائیے گا کہ میں نے سامان کا جھولا اٹھایا اور غریب بستی کی طرف نکل گیا. اطلاع ملی تھی کہ اس وبا کی وجہ سے گھروں میں قید بہت سے لوگ تکلیفوں کا سامنا کر رہے ہیں. میں نے بستی میں پہنچ کر ایک گھر کے دروازے پر دستک دی. دوپہر کا وقت تھا. تھوڑے توقف کے بعد دروازہ کھلا اور ایک شخص باہر آیا. دروازے کی اوٹ سے نظر اندر گئی تو اندازہ ہوا کہ کھانا کھایا جا رہا ہوگا. باہر آنے والا شخص تھوڑا جھیپ سا گیا تھا کیونکہ رمضان کا مہینہ تھا. اس کی نظر میرے جھولے پر پڑی مگر خاموشی سے اس نے اپنی شرمندگی مٹانے کی کوشش کرتے ہوئے مجھ سے پوچھا, کہیے آپ لوگوں کی مدد کے لیے آئے ہیں. یہ کہتے ہوئے میں نے راشن کا تھیلا اس کے سامنے رکھ دیا. اس کے چہرے پر تشکر کے آثار نمودار ہوئے لیکن میرے چہرے پر ناگواری کے آثار تھے. مجھ سے برداشت نہ ہوا اور میں نے واعظ و نصیحت کا پٹارا کھول دیا. سنیے, مجھے بڑا افسوس ہے کہ میں نے تم جیسے لوگوں کی مدد کی ہے.
रमजान मुबारक का महीना है, इतना मुबारक महीना कि इसमें अल्लाह हमारे गुनाहों को बख्श देता है, उसकी रहमत जोश में होती है, उसके फर्ज इबादतें 70 गुना सवाब की मुस्तहिक होती हैं और नफिल की कीमत फर्ज के बराबर हो जाती है। तुमको पता है कि एक रोजा भी ये छूट जाए तो जिंदगी भर यही रोजा नहीं रख सकते हो, इसकी भरपाई कोई नहीं कर सकता। मैंने एक एक लफ्ज पर जोर देते हुए कहा, मुझे अफसोस है कि तुम जैसे लोग इसके कद्र नहीं करते। तुम्हें क्या पता कि ये जो कुछ आज परेशानी में सब मुब्तला हैं, ये तुम जैसों की नाफरमानियों का ही नतीजा हो। तुम लोगों ने रमजान की इतनी बड़ी बरकतों से अपने को महरूम रखा है। थोड़ी तो शर्त करो, थोड़ा तो लिहाज करना चाहिए। रमजान होते हुए दोपहर में खाना खा रहे हो, क्या बिगड़ जाता अगर रोजा रख लेते? इतना अहम रोजा तुमने क्यों छोड़ा? रोजा रखते रोजा। वो खामोशी से मेरी लान तान सुनता रहा। उसकी गर्दन झुकी हुई थी। मैंने सर उठाकर उसकी तरफ देखा, उसकी आंखों से आंसू जारी थे। मैं दिल ही दिल में खुश हो रहा था कि मेरी बातों का उस पर असर हुआ है और निदामत से वो आंसू बहा रहा है। मैंने अपने जोर बयान पर फख्र भी महसूस किया और थोड़ी सी गर्दन भी खम की और अपने चेहरे के नुकूश से ये भी जाहिर करने की कोशिश की कि वो आइंदा ऐसा नहीं करेगा। मैं वापसी के लिए मुड़ा तो उसकी रुंधी हुई आवाज आई, भाईजान, हम तो तीन दिन से दिन रात रोजा रख रहे थे। आज अल्लाह का एक बंदा खाना तकसीम करके चला गया, हमसे बर्दाश्त ना हो सका और हमने आगे वो कुछ ना बोल सका, बल्कि उसके होंठों से हरकत के सिवा अल्फाज नहीं निकल रहे थे। मेरा सारा गुरूर खाक हो गया था और मैं पीछे देखे बगैर अपने घर की तरफ चल पड़ा, क्योंकि मेरे अंदर उसका सामना करने की जसारत नहीं थी। यूं महसूस हो रहा था गोया किसी ने बदगुमानी और तकब्बुरात का मनोबोझ मेरे सर पर रख दिया। अस्सलाम। मैं मिर्जा अनवर बेग के बेहतरीन अफसाने पर उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ और उनके जज्बात और उनके तजुबात और उनके मुशाहिदात में दाद देता हूँ कि इतना अच्छा अफसाना जो वक्त हाजिर की सख्त जरूरत था उन्होंने हम सबके सामने पेश कर दिया।